سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سوشل میڈیا میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پیش خدمت ہے اردو نیوز میگزین۔ نیوز میگزین کے آغاز میں آئی سنتے ہیں حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ جہانما میں آج کے اہم موضوعات یہ ہیں۔ ہندوستان نے نگروٹا میں جیش محمد کے ذریعے حملے کی کوشش سے متعلق سفیروں کے منتخب گروپ کو بریف کیا۔ گلگت بلتستان دھاندلی کے الزامات پر ہنگامے، اپوزیشن جماعتوں پر الزامات۔ روسی صدر پوتن بائیڈن کو بطور امریکی صدر تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ بی ایس ایف بھارت بنگلہ دیش سرحد پر UAV تعینات کرے گا۔ بھارتی نژاد امریکی مالا ایڈیگا جو بائیڈن کی پالیسی ڈائریکٹر مقرر، اور جو بائیڈن اینٹونی بلنکن کو نیا امریکی وزیر خارجہ مقرر کریں گے۔ بھارت نے جموں کشمیر میں حملہ کرنے کی کوشش کرنے والے جیش محمد کے پاکستانی دہشت گردوں کے بارے میں پیر کے روز امریکہ اور روس سمیت مختلف ممالک کے منتخب گروپ کے سفیروں کو تفصیلات سے آگاہ کیا، جنہوں نے گزشتہ ہفتے جموں کشمیر میں حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ذرائع کے حوالے سے روزنامہ ٹائمز آف انڈیا نے خبر دی ہے کہ تمام حقائق سے واقف ایک شخص نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ سفیروں کے اس گروپ میں، جس میں فرانس اور جاپان کے مشن کے سربراہان بھی شامل تھے، کو ایک تفصیلی معلوماتی دستاویز فراہم کیا گیا تھا، جس میں منصوبہ بند حملے کی تفصیلات اور دہشت گردوں سے برآمد کردہ اشیاء اور گولہ بارود کی ایک فہرست شامل تھی، جن سے ان کے پاکستانی ہونے کی واضح نشاندہی ہوتی تھی۔ سفیروں کو بتایا گیا کہ دہشت گردوں نے کس طرح سامبا سیکٹر میں ایک زیر زمین سرنگ کے ذریعے بھارت میں دراندازی کی تھی۔ پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کی ابتدائی تفتیش اور ضبط شدہ AK-47 رائفل اور دیگر اشیاء پر مارکنگ نے ہندوستان کو یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور کیا کہ ان دہشت گردوں کا تعلق پاکستان کی تنظیم جیش محمد سے ہے۔ خبر کے مطابق 19 نومبر کو جموں کشمیر کے نگروٹا میں ہونے والے حملے کو ناکام بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں خارجہ سیکرٹری ہرش شرنگلا نے کے ذریعے پیش کردہ رپورٹ میں اس واقعے سے سلامتی، سفارتکاری اور دہشت گردی کے خلاف جنگ پر اثر انداز ہونے والے مضمرات پر بھی توجہ مرکوز کرائی گئی ہے۔ اسی دوران 20 نومبر کو وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے کہا تھا کہ جموں کشمیر میں سیکورٹی فورسز نے اس گروپ کے 4 افراد کو ہلاک اور اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد کے ایک بڑے ذخیرے کو ضبط کر کے جیش محمد کے حملہ کرنے کے ناپاک منصوبے کو ناکام بنا دیا تھا۔ اس ضمن میں بھارت نے 21 نومبر کو پاکستان کے چارج دی افیئر آفتاب حسن خان کو طلب کیا تھا اور متنبہ کیا تھا کہ نئی دہلی اپنی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا پابند ہے۔ بھارت نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پاکستان دہشت گردوں کی مدد کرنے کی اپنی پالیسی سے باز آ جائے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرے۔ سفیروں کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ 19 نومبر کا واقعہ جموں کشمیر میں پاکستان کی جاری دہشت گردی کی مہم کا حصہ تھا اور صرف 2020 میں ہی دہشت گردی کے 200 واقعات ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس حملے کی کوشش سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دہشت گرد فروری 2019 کے پلوامہ خودکش بم دھماکے کے بعد سے ہندوستان میں بڑے دہشت گردی کے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور اس کی مضمرات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ جموں کشمیر میں ضلع ترقیاتی کونسل کے انتخابات کو سبوتاژ کرنے اور دہشت گردانہ حملہ کرنے کی جاری کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ جموں کشمیر کی صورتحال کو غیر مستحکم کرنے اور بلدیاتی انتخابات اور جمہوریت کو زک پہنچانے کے لیے پاکستان کی مستقل کوششوں سے متعلق بھارت کی تشویش کے بارے میں بھی سفیروں کو آگاہ کیا گیا۔ پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان کے دارالحکومت گلگت میں حالیہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے تنازع کے بعد جاری پرامن مظاہروں کے دوران آگزنی، گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کی وارداتیں ہوئی ہیں۔ انتظامیہ نے اس کا ذمہ دار حزب اختلاف کی جماعتوں کو قرار دیا ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ BBC کی ایک خبر میں کہا گیا ہے کہ پیر کے روز گلگت شہر میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج اور ہنگامہ آرائی بھی ہوئی۔ خیال رہے کہ علاقے میں حالیہ انتخابات کے نتائج کو ملک کی 2 بڑی حزب اختلاف کی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے اور حکومت پر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر دھاندلی کے الزامات عائد کیے ہیں۔ مظاہروں اور احتجاج سے متعلق گلگت بلتستان کے نگراں حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق نے الزامات عائد کیے ہیں کہ جس وقت چیف الیکشن کمشنر
राजा शहबाज खान गिलगित में शिकायत सुन रहे थे। उस दौरान पीपल्स पार्टी के इंतखाब हारने वाले उम्मीदवार और कारकुनान ने दरवाजे पर ठोकरें मारी और बाहर निकल गए, जिसके बाद हंगामा आराई शुरू हो गई थी। तर्जुमान के मुताबिक हंगामा आराई के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए और उन्होंने हुकूमत की रिट को बहाल किया। इसी दौरान गिलगित से सहाफी अब्दुर्रहमान बुखारी के मुताबिक मुश्तइल मुजाहिरीन ने चिनार बाग के करीब रोड को ब्लॉक किया तो पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें शुरू हो गईं। उनके मुताबिक इस मौके पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और हवाई फायरिंग भी की थी। उनके मुताबिक पुलिस कार्रवाई के बाद शहर में हंगामे फूट पड़े। अब तक नामालूम मुजाहिरीन ने महकमा जंगलात के दफ्तर और 4 गाड़ियों को, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी शामिल है, नजरे आतिश कर दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो किसी भी अमेरिकी सदर के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो जो बाइडेन की इंतखाबी कामयाबी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस ने इस हवाले से तहरीर किया है कि इतवार को रूस के लिए सरकारी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में पुतिन ने कहा कि वह हर उस लीडर के साथ काम करने के लिए तैयार हैं जिसे अमरीकी अवाम का एतमाद हासिल है। उनके बकौल इस एतमाद की तौसीक सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जब मुखालिफ पार्टी इंतखाबी नताइज तस्लीम करे या इंतखाबी नताइज की कानूनी तरीके से तस्दीक हो। रूसी सदर उन चंद आलमी रहनुमा में शामिल हैं जिन्होंने ताहाल बाइडेन की कामयाबी को तस्लीम नहीं किया। रूस पर अमरीकी खुफिया इदारे ये इल्ज़ाम भी लगाते रहे कि उसने 2016 के सदारती इंतखाबात में सदर डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने के लिए इंतखाबी अमल में मुदाखलत की थी। रूस को खदशा है कि बाइडेन के अमरीका के सदर बनने के बाद मास्को को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है और इसके अलावा इंसानी हुकूक के मामलात पर भी अमरीका के साथ कशीदगी में इजाफा हो सकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस इक़दाम से अमरीका और रूस ताल्लुकात को नुकसान पहुँच सकता है, तो उन्होंने कहा कि नुकसान पहुंचने के लिए कुछ नहीं है, वो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। बीएसएफ के ज़राए ने इतवार के रोज बताया कि मरकज ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दरअंदाजी और स्मगलिंग के खात्मे के लिए भारत बांग्लादेश सरहद के साथ बगैर पायलट की फजाई गाड़ियां तैनात करने का फैसला किया है। रोजनामा द टेलीग्राफ की एक खबर के मुताबिक बीएसएफ ने दरअंदाजी के बढ़ते हुए वाकयात की रोकथाम के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सरहदों के हुसूल के हिस्सों को एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी की इमदादी तारबाड़ से सील करने पर भी काम शुरू कर दिया है। बीएसएफ के एक सीनियर अफसर ने कहा कि बांग्लादेश के सरहदी हिस्से पर यूएवीज को तैनात करने की तजवीज पर मरकज की मंजूरी खुश आइन इक़दाम है। फजाई निगरानी बीएसएफ के एहलकारों को दरअंदाजी के लिए कमजोर खित्तों पर कड़ी नजर रखने में बहुत मदद मिलेगी। बीएसएफ बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर तवील बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ तैनात है, जो बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से होकर गुजरती है। ख्याल किया जाता है कि यूएवीज दरअंदाजी की मुमकिना कोशिशों की असल वक्त की तस्वीर फराहम करेंगे। बीएसएफ अफसरान ने मजीद कहा कि ये इंसानी स्मगलिंग के अलावा जाली करेंसी नोटों, मवेशियों और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में भी फायदेमंद साबित होगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन ने हिंदुस्तानी नजाद अमरीकी माला अडीगा को अपनी अहलिया जिल का पॉलिसी डायरेक्टर मुकर्रर किया है और तजर्बेकार तालीमी पॉलिसी शख्सियत का इंतखाब किया है, क्योंकि आने वाली खातून अव्वल तालीम पर तवज्जो देती हैं और कम्युनिटी कॉलेज की क्लासों की तदरीस जारी रखने का इरादा रखती हैं। मोहतरमा अडीगा जिल के सीनियर मुशीर और मिस्टर बाइडेन की 2020 मुहिम के लिए सीनियर पॉलिसी मुशीर थी। इससे कबल वो बाइडेन की आला तालीम और फौजी खानदानों की फाउंडेशन में बतौर डायरेक्टर काम करती थी। ओबामा की इंतजामी के दौरान वो ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल अफेयर्स में तालीमी प्रोग्रामों के लिए नायब असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुकी हैं और वो महकमा खारजा के आलमी ख़वातीन के मामलात के दफ्तर में चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुकी हैं। मुस्तकबिल की पहली खातून अव्वल जो बाइडेन की पॉलिसी डायरेक्टर माला अडीगा होंगी, जो इनकी सीनियर मुशीर रह चुकी हैं और बाइडेन हैरिस मुहिम में सीनियर पॉलिसी मुशीर की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर शाये की है कि एक ऐलान के मुताबिक नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन एंटोनी ब्लिंकन को अपने वजीर खारजा की हैसियत से मुकर्रर करेंगे। वो एक तवील मुद्दती कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के माहिर हैं, जो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में पुरजोश हैं और चीन को मुश्तरका चैलेंज के तौर पर देखते हैं। बाइडेन अपनी कौमी सलामती की टीम के दीगर मेंबरों की तकर्रुरी का ऐलान भी करेंगे। इसी दौरान नायब सदर के तौर पर मुंतखब होने वाली
कमला हैरिस ने कहा है कि बहरानों से दो चार कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के रहनुमाओं को हमारे मुल्क को महफूज रखने के लिए और पूरी दुनिया में अमेरिका की क़यादत को बहाल करने और आगे बढ़ाने के लिए इल्म और महारत हासिल है। ये लीडर अमेरिका की बेहतरीन नुमाइंदगी करते हैं। अभी आप सुन रहे थे हालात हाजरा पर मबनी जहानुमा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से हम आपसे मुखातिब हैं। अब पेश है आज की बात। मिस्र मशहूर है कि जिन्हें दूसरों की आंख का तिनका दिखाई देता है, उन्हें अपनी आंख का शहतीर नहीं नजर आता। ये मिसल पाकिस्तान के रहनुमाओं पर पूरी तरह सादिक आती है। पिछले दिनों फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब एक जुनूनी शख्स ने एक स्कूल टीचर का कत्ल कर दिया क्योंकि उसने मुबैना तौर पर इजहार आज़ादी की मिसाल के तौर पर अपने शागिर्दों को पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बनाया गया एहानत आमेज कार्टून दिखाया था। उसी के तसलसल में एक दूसरे शहर नीज के एक गिरजाघर के बाहर हुए कातिलाना हमले में 3 लोग और हलाक हुए। इन 2 वाकयात ने महज़्ज़ब दुनिया को हिला कर रख दिया, लेकिन ऐसे किसी मौके को पाकिस्तान और बिलखुसूस उसके मौजूदा सरबराह इमरान खान कैसे हाथ से जाने देते। चुनांचे वजीर आज़म इमरान खान ने मैक्रोन और फ्रांस के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान देना शुरू कर दिया। सदर मैक्रोन पर इल्जाम लगाया कि वो मुसलमानों को जानबूझकर इश्तियाल दिला रहे हैं और साथ साथ इस्लामाबाद में मुकीम फ्रांसीसी सफीर को बुलाकर उन्हें झाड़ पिलाई गई। उसके बाद फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग को एक मकतूब रवाना किया गया कि फेसबुक पर जिस तरह होलोकॉस्ट के खिलाफ बात करने पर पाबंदी है, उसी तरह इस्लामोफोबिया पर भी पाबंदी लगाई जाए। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया और होलोकॉस्ट का जिक्र एक ही सांस में इस तरह किया जैसे ये दोनों एक जैसे मामले हैं। मार्क ज़करबर्ग अगर उनकी इस बात पर कान धरते तो पहले तो वो खुद इमरान खान के कुछ दिन पहले दिए गए उस बयान की खबरगिरी करते जिसमें उन्होंने ओसामा बिन लादेन को शहीदे इस्लाम करार दिया था। जिस वक्त पाकिस्तान के वजीर आज़म फ्रांस में मजहबी मुनाफिरत और अक़लियतों के साथ तासुब की बात कर रहे थे, उस वक्त खुद पाकिस्तान में हिंदुओं, ईसाइयों और अहमदियों के खिलाफ मुनाफिरत और तासुब के पे दर पे वाक़यात पेश आ रहे थे। खुद सिंध में 24 अक्टूबर को एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया और वहां मूर्ति की बेहुरमती की गई। ऐसी खबरें बराबर सुनने में आती हैं कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को जबरिया मुसलमान बनाने की एक मुहिम सी चली हुई है। हिंदू और ईसाई बिरादरी की कमसिन लड़कियों को अगवा करके उन्हें मुसलमान बनाकर शादी कर ली जाती है और हुकूमत भी उनकी मदद नहीं करती। कुछ यही हाल अहमदिया फिरके के लोगों का है। अब से तकरीबन 46 साल पहले पाकिस्तान में अहमदियों को दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया गया था। उसके बाद उन पर बतदरीज अरसा हयात तंग किया जाने लगा और अब जब से इमरान खान की हुकूमत इक़्तिदार में आई है, उनके खिलाफ सरगर्म जमातों की जारहियत को बढ़ावा ही मिला है। अफसोस कि बुनियादी इंसानी हुकूक की इन पामालियों से पाकिस्तानी हुकाम सरफे नजर करते हैं और सिर्फ दिखावे के लिए छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। इमरान खान ही क्यों, पाकिस्तान के वुज़रा भी ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातों से गुरेज नहीं करते। 2 दिन कबल ही पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक मोहतरमा शीरी मजारी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि सदर मैक्रोन मुसलमानों के साथ वही सलूक कर रहे हैं जो नाजियों ने दूसरी जंग अजीम के दौरान यहूदियों के साथ किया था। उन्होंने लिखा कि अब फ्रांस में मुसलमान बच्चों को पहचान नंबर दिया जाएगा, दीगर बच्चों को नहीं, जैसा कि यहूदी बच्चे अपने लिबास पर पीला तारा लगाने पर मजबूर किए गए थे। मोहतरमा मजारी ने ये बयान एक ऑनलाइन मैगजीन में शाया एक मजमून के हवाले से दिया था, मगर मैगजीन ने अपनी खबर में तरमीम करते हुए कहा कि अगर इस तजवीज पर अमल होता तो इस तरह का शनाख्ती नंबर तमाम बच्चों को दिया जाएगा, सिर्फ मुस्लिम बच्चों को नहीं। इसके बाद मोहतरमा को अपना ट्वीट हज़फ करना पड़ गया। यहाँ किसी को भी इस पर जरूर ताज्जुब होगा कि किसी मुल्क की वजीर गैर सरकारी किसी रिपोर्ट को नजीर बनाकर इतना जारहाना बयान
कैसे जारी कर सकती हैं? दरअसल पाकिस्तानी हुकूमत और इंतजामिया को जो काम करना चाहिए वो तो करते नहीं, सिर्फ इस्लामी दुनिया की नजर में अपने आप को मुसलमानों का खैरखा साबित करना ही उनका मकसद है। वरना इंसानी हुकूक की वजीर को दूसरे मुमालिक की अक़लियतों के हुकूक के मुबैना इतलाफ पर एतराज करने के बजाय अपनी अक़लियतों हिंदू, ईसाई और अहमदियों के हुकूक का ख्याल करना चाहिए। हाँ, अगर अपने मुल्क से बाहर ही देखना है तो फिर गैर मुसलमानों के इंसानी हुकूक की पामाली जिस बड़े पैमाने पर चीन में हो रही है उस पर सवाल उठाना चाहिए। मगर वाह अफसोस कि गैरियों के खिलाफ मजालिम को मुमलिकत पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान बकवास करार देते हैं। आप सुन रहे थे आज की बात। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से अब सुनते हैं खबरनामा के तहत खबरें। अब आप रेहाना फरीदी से खबरें सुनिए। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए आला के साथ मीटिंग की है। खारजा सेक्रेटरी ने जम्मू और कश्मीर में हमले करने के लिए पाकिस्तानी दहशतगर्दों के मंसूबे के बारे में मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीरों को जानकारी दी। कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 93.76% हो गई है। मरकजी सरकार और ICMR ने कोविड की जांच से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम किया है ताकि सबके लिए आसानी से जांच को यकीनी बनाया जा सके। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सदर का ओहदा जो बाइडन को सौंपने के लिए तैयार हो गए हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए आला के साथ मीटिंग की। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वज़राए आला उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शिरकत की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन, काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा, सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण और नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर VK पाल भी कोविड के जायजे से मुताल्लिक आला सतह की इस मीटिंग में मौजूद थे। वजीर आज़म ने गुज़िश्ता जुमे को वैक्सीन की तैयारी के लिए भारत की हिकमत अमली और उसे आम लोगों तक पहुंचाने के बारे में चोटी के ओहदेदारों के साथ मीटिंग की थी। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने बैरूनी मिशनों के सरबराहों के एक मखसूस ग्रुप को जम्मू के नगरोटा जिले में दहशतगर्दाना हमले के मंसूबे और उसके सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई पर होने वाले मुज़मरात के बारे में तफसील से बताया। इस दहशतगर्दाना हमले के मंसूबे को हिफाजती दस्तों ने इस महीने की 19 तारीख को नाकाम बना दिया था। ज़राए ने कहा है कि कोविड-19 के पेश नज़र वजारत खारजा के जरिए छोटे छोटे ग्रुपों को दी जाने वाली ब्रीफिंग्स की ये पहली ब्रीफिंग थी। दीगर सेक्रेटरी भी अपने दायरा कार के शोबों में मिशनों के सरबराहों को तफसीलात से आगाह करेंगे। ज़राए के मुताबिक इसका मकसद बैनुल अक़वामी बिरादरी को जहां तक मुमकिन हो सके इस मालूमात को फराहम करना है। मिशनों के सरबराहों को इस वाक़े के बारे में तफसीलात फराहम की गई हैं कि किस तरह इस दहशतगर्दाना हमले को नाकाम बनाया गया और दहशतगर्दों के पास से ऐसे हथियार और गोली बारूद बरामद किए गए जिनसे उनके पाकिस्तानी होने की अक्कासी होती है। सरबराहों को बताया गया है कि किस तरह पुलिस और खुफिया हुक्काम की इब्तदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि बरामद की गई AK-47 राइफलें और साजो सामान का ताल्लुक पाकिस्तान की जैश मोहम्मद से है। इस बात को भी उजागर किया गया है कि 19 नवंबर का ये वाक़या जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से जारी दहशतगर्दाना मुहिम का एक हिस्सा है और साल 2020 में ही दहशतगर्दाना तशद्दुद के 200 वाक़यात पेश आ चुके हैं जिनमें 199 दहशतगर्द मारे गए हैं। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में एक और अहम संग मील तय किया है। मुल्क में अब तक 86 लाख से ज्यादा अफराद के सेहतयाब होने के साथ ही शिफायाबी की कौमी शरह बेहतर होकर 93.76% हो गई है। मजमूई तौर पर लगभग 86,05,000 मरीजों की शिफायाबी के साथ ही मुल्क में सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद ज़ेरे इलाज मरीजों की तकरीबन 20 गुना हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में
42,000 से ज्यादा मरीजों को सेहतयाब होने के बाद उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जबकि इसी दौरान लगभग 38,000 नए केस सामने आए हैं। इस वक्त मुल्क में कुल 4,38,667 मरीज जेरे इलाज हैं। वजारत सेहत ने मुत्तला किया है कि मुल्क में 26 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 20,000 से भी कम है। उसने बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 480 मरीजों की मौत हुई है और शरह अमवात 1.46% तक आ गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलात के पेश नज़र रियासत में सभी तालीमी इदारों को 31 दिसंबर तक बंद करने का फैसला किया है। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि रियासती सरकार ने 4 जिलों में 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाने का भी फैसला किया है। ये जिले हैं शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू। अलबत्ता 26 नवंबर से ऑनलाइन दर्स व तदरीस का काम शुरू होगा। टीचरों से कहा गया है कि वो अगले अहकामात तक घर से काम करने का सिलसिला जारी रखें। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड के तकरीबन 11 लाख नमूनों की जांच की गई है। इसके साथ ही जांच किए गए नमूनों की कुल तादाद तकरीबन 13 करोड़ 37 लाख हो गई है। मरकजी सरकार और ICMR ने जांच करने के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम किया है। भारत की जांच करने की सलाहियत 15 लाख यौमिया हो गई है। सेहत की वजारत ने कहा है कि जांच में इजाफे से कोविड-19 मामलों की जल्द निशानदही, उन्हें तेजी से अलग थलग किए जाने और मौसर इलाज में मदद मिलती है। उसने कहा है कि इससे अमवात के वाक़यात भी कम होते हैं। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नश्र की जा रही हैं। अमेरिका में जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन GSA ने कई हफ्ते के तात्तुल के बाद जो बाइडेन को सदारती इलेक्शन में कामयाब करार दे दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एजेंसियों को ताउन करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन के ओहदा संभालने का बाकायदा अमल शुरू होना चाहिए। सदर ने कहा है कि ओहदा सौंपने के अमल की निगरान एजेंसी को जो जरूरी लगे वो करे। मिशिगन रियासत में जो बाइडेन की जीत का बाकायदा ऐलान होने के बाद ये सूरत हाल सामने आई है। जनाब ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका समझा जा रहा है। GSA के ऐलान के बाद पेंटागन ने कहा है कि वो बाइडेन टीम को मतलूबा हिमायत और ताउन पेशा वाराना तौर पर और बाकायदगी से फराहम करेगा, जो कि कौमी सलामती से मुताल्लिक उसकी जिम्मेदारियों के ऐन मुताबिक हो। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर आज से बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सेशल्स का दौरा शुरू कर रहे हैं। अपने 6 रोज़ा दौरे के दौरान वो उन मुल्कों के अपने हम मनसबों के अलावा वहाँ की आला क़यादत के साथ भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से डॉक्टर जयशंकर का बहरीन का ये पहला दौरा होगा। वो बहरीन के वज़ीर आज़म शहज़ादा खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के इस महीने की 11 तारीख को हुए इंतकाल पर भारत के अवाम और हुकूमत की जानिब से वहाँ की क़यादत के साथ ज़ाती तौर पर इजहार ताज़ियत करेंगे। वो बाहमी, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 25 और 26 नवंबर को मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे, जहाँ वो अपने हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ मीटिंग करेंगे। अपने दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर मौसूफ 27 नवंबर को 2 रोज़ा दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे, जहां वो अपने हम मनसब के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत को आलमी सरमायाकारी का एक पसंदीदा मुकाम बनाने के लिए इक़्तिसादी इस्लाहात की रफ्तार जारी रहेगी। एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जिसका एहतमाम CII ने किया था, मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी वबा के इस दौर में भी ज़बरदस्त इस्लाहात करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी ने इस्लाहात के सिलसिले में ऐसी नौयत के इक़दाम किए हैं जो पिछले कई दहाइयों में नहीं किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि माली शोबे को पेशा वाराना किया जा रहा है और हुकूमत हसस की फ़रोग़ जारी रखेगी। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के बारे में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने टैक्स दाखिल करने के अमल को आसान बना दिया है। G20 मईशतों के रहनुमाओं ने कहा है कि वो पूरी दुनिया में कोविड-19 वैक्सीन की काबिल इस्तेताअत
تقسیم ادویات اور جانچ کو یقینی بنائیں گے تاکہ غریب ممالک اس سے محروم نہ رہیں۔ چوٹی میٹنگ کے قطعی اعلانیے کے مطابق رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ ویکسین، جانچ اور دواؤں کے لیے عالمی پروجیکٹ کی حمایت کرتے ہیں۔ آخر میں بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ کی۔ خارجہ سیکریٹری نے جموں و کشمیر میں حملے کرنے کے لیے پاکستانی دہشت گردوں کے منصوبے کے بارے میں مختلف ملکوں کے سفیروں کو جانکاری دی۔ کووڈ-19 سے شفایابی کی شرح بہتر ہو کر 93.76% ہو گئی ہے۔ مرکزی سرکار اور ICMR نے کووڈ کی جانچ سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کیا ہے تاکہ سب کے لیے آسانی سے جانچ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صدر کا عہدہ جو بائیڈن کو سونپنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو سے خبریں ختم ہوئیں۔ اس خبرنامے کے ساتھ ہی اردو نیوز میگزین کا آج کا شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔